অভিমুখ আমাদের পথপ্রদর্শক, আমাদের ভ্যানগার্ড, তাকে নিয়ে এক সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। সেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা সকলে জানেন, ইয়াং ম্যানস গ্রেস ক্লাবের পরিচালনায় তথা ব্যবস্থাপনায় যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, সেই সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান আয়োজনে প্রধান কেন্দ্রবিন্দু, সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ইসলামপুর তথা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে প্রথম আইএস অফিসার মিস্টার এমডি মঞ্জার হোসেন আঞ্জুম, যাকে আমরা সকলে প্রিন্স হিসেবে চিনি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে আসছেন শহরের কিছু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বরা, যাদের উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আজকে পথ চলা শুরু হবে। আমরা আর কিছুক্ষণ মাত্র অপেক্ষা করব, তাদের স্বনামধন্য উপস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হবে। নিজের মুখে চোখে লাগিয়ে নেবেন। তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনারা চলে আসবেন মঞ্চে, উপভোগ করুন এই সময়টুকু এবং সবার সঙ্গে শেয়ার করে নিন আনন্দের এই মুহূর্তটুকু। তাই অনুরোধ করব, আপনারা সকলে মঞ্চে আসবেন এবং এগিয়ে নিয়ে যাই আজকের এই পর্ব, আজকের এই অহংকারের দিনটি। ধন্যবাদ। পৌর প্রশাসক ও বিধায়ক মাননীয় শ্রী কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয় আর কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পেতে চলেছি মাইনরিটি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার মাননীয় শ্রী গোলাম রব্বানী মহাশয়কে। অতিথির তালিকায় যারা যারা রয়েছেন, হয়তো অনেকেই এর মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বিভিন্ন কারণে, তবু যারা যারা রয়েছেন বা যাদের নাম রয়েছে, আমি একবার তাদের নামই ঘোষণা করছি। ইসলামপুর পৌরসভা পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী মানিক দত্ত মহাশয় আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। মাননীয় শ্রী ব্লক প্রেসিডেন্ট শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন মহাশয় উপস্থিত থাকছেন আজকের এই আনন্দ উদ্ভাসনে। মাননীয় শ্রী এসডিও স্যার রয়েছেন বা থাকবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। এক্সিকিউটিভ অফিসার ইসলামপুর মিউনিসিপ্যালিটির রয়েছেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবেন। আঞ্জুম প্রিন্সের সংবর্ধনা জ্ঞাপনমূলক অনুষ্ঠানের পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের মাঝে যে উপস্থিত হয়েছেন বিশেষ অতিথিরা, তাদেরকে মাননীয় সম্মানীয় আসনে আসীন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ধীরে ধীরে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইসলামপুর পৌরসভার পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী মানিক দত্ত মহাশয়। অনুরোধ করব, যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন একবার উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে, একবার জোরে হাততালির মধ্য দিয়ে আমাদের আজকের অতিথিকে আমরা সম্মানীয় আসনে আসীন হওয়ার জন্য একবার অনুরোধ করছি। বিনম্র অনুরোধ রইল মাননীয় আসনে আসীন হওয়ার জন্য ইসলামপুর পৌরসভার পৌর প্রশাসক মাননীয় শ্রী মানিক দত্ত মহাশয়কে। একবার উষ্ণ করতালি হোক সকল ক্লাব মেম্বার, একবার উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো। এরপর আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাননীয় শ্রী বদরুল ইসলাম মহাশয়। একবার উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে তাকেও আমরা স্বাগত জানাই। এরপর মঞ্চে আসছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রী মুর্তাজা হোসেন মহাশয়। মাননীয় শ্রী মুর্তাজা হোসেন মহাশয়কে বিনম্র অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। এরপর মঞ্চে আসছেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাননীয় শ্রী ফখরু মিয়া মহাশয়। একবার উষ্ণ করতালি সহযোগে আমরা স্বাগত জানাই।
মাননীয় শ্রী ফারুক ভাই সাহেবকে উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে আমরা তাকে ডেকে নিচ্ছি আমাদের সম্মানীয় আসন। স্নেহে ভালোবাসায় সম্মানে তাকে আমরা বরণ করে নেব। আমরা চলে যাচ্ছি এরপর বরণ পর্বে। ধন্যবাদ। এরপর বরণ করে নিচ্ছি আমরা মাননীয় ফিটুর সভাপতি মাননীয় শ্রী কানেলাল বোচ্ছা মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন আমাদের অ্যাক্টিভ বডি মেম্বার ক্লাবের মাননীয়। অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর পুষ্পস্তবকের মধ্য দিয়ে আমরা বরণ করে নেব বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাননীয় শ্রী প্রকাশ সিংঘি মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন মেহতাব আলম মহাশয়। মেহতাব আলম মহাশয় বরণ পুষ্পস্তবকের মধ্য দিয়ে বরণ পর্ব চলছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এরপর আমরা বরণ করে নেব বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রী হাজী ইকবাল হোসেন মহাশয়কে। ধন্যবাদ। এরপর আমরা বরণ করে নেব বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রী হাজী আলী সাহেব মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন আমাদের ধন্যবাদ। এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাননীয় শ্রী আক্তার হোসেন নুরি মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন সাজিদ আলম। মাননীয় শ্রী উষ্ণ করতালের মধ্য দিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবো। এরপর আমরা বরণ করে নেব আমাদের স্বনামধন্য প্রিয় চিকিৎসক মাননীয় শ্রী মাজহার আলম মহাশয়কে। ডক্টর মাজহার আলম মহাশয়কে বরণ করে নেবেন বিশিষ্ট শিক্ষক ফজলে রব্বি এবং শের আলী। বরণ করে নেওয়া উচিত বিশিষ্ট চিকিৎসক মাননীয় শ্রী। এরপর বরণ করে নেব আমাদের ওয়াইএমজিসি ক্লাবের সিনিয়র ক্লাব মেম্বার শ্রদ্ধেয় জাকির হোসেন মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন আইনজীবী ধন্যবাদ। এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি বিশিষ্ট সমাজকর্মী মাননীয় শ্রী বদরুল ইসলাম মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন সমীর এবং সংলু মহাশয়। তাদের দুজনকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছি। সমীর এবং সংলু মহাশয় বরণ করে নেবেন মাননীয় শ্রী বদরুল ইসলাম মহাশয়। না হচ্ছে এবার জোরে করো উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে। এরপর আমরা বরণ করে নিচ্ছি বিশিষ্ট সমাজসেবী মাননীয় শ্রী ফখরু মিয়া মহাশয়কে। বরণ করে নেবেন এবারে এরপর আজকের এই অনুষ্ঠানের আমাদের মুখ্য এবং প্রধান অতিথি, আমরা তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। অপেক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান এগিয়ে যাবে আমাদের স্বনামধন্য অতিথিদের তাদের শব্দ কথার মধ্য দিয়ে, তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু আজ এই অনুষ্ঠানের এই আয়োজন, এই সম্ভাষণ, যারা আজ এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক এবং
এবং এই ক্লাবের অন্যতম একজন গভর্নিং বডির সেক্রেটারি সদস্য এমডি আজাদ হোসেন মহাশয়। এমডি আজাদ হোসেন মহাশয় প্রথমেই স্বাগত ভাষণ আমরা শুনে নেব, তারপর আমাদের বরণ পর্ব চলতেই থাকবে। আমাদের সম্মানীয় অতিথিদের আমরা সম্মানীয় আসনে আসেন। तमाम मेहमान जितने भी वीआईपीज हैं, हम जानते हैं कि सभी मिस्टर आईएएस ऑफिसर मोहम्मद मंजर हुसैन अंजुम का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं अल्लाह का जब हुक्म होगा तभी होगा। लेकिन इस बीच जो है हमको जो खबर मिली कि वो लोग शॉर्टली तैयार होकर आ ही रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। तब तक आप लोगों को सलाम आदाब नमस्ते कहते हुए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि आप लोग आए हैं और हम लोगों की जो हौसला अफजाई इससे हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ लाइनें बोलूंगा, गौर फरमाइएगा। कहते हैं जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है। इसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों से कि ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए हम लोग समझते हैं। लेकिन इस बीच चलिए उनके बारे में कुछ बातें करते चले। इस बीच मुझे एक कहीं पर एक वीडियो फुटेज मिला मिस्टर प्रिंस का, जो हमारे आईएएस ऑफिसर हैं, कहीं पर कोई वीडियो फुटेज मिला जिसमें वो कह रहे थे कि आज हमारे इलाके के लोग मुझे लेकर बहुत खुशी जता रहे हैं, बहुत खुशी इजहार कर रहे हैं। तो कभी कभी मैं तो खुश तो हो जाता हूं, लेकिन साथ ही ये भी सोचता हूं कि मैं ही पहला यहाँ पर आईएएस क्यों, मुझसे पहले क्यों नहीं कोई, मुझसे पहले क्यों आईएएस नहीं हुआ या डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर नहीं हुआ या आईपीएस नहीं हुआ, मुझसे पहले क्यों नहीं हुआ। बेशक हमारे यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की भरमार है हमारे यहाँ पर, हमारे इस्लामपुर में। तो इससे पहले मुझसे पहले कोई यहाँ पर कोई आईएएस क्यों नहीं बन पाया, आईपीएस क्यों नहीं बन पाया या डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर क्यों नहीं बन पाया। ये थोड़ी सी उनकी बात थी जो वो अपने दिल से बता रहे थे। उस पर वही कहेंगे कि कामयाब होने के बाद भी एक छोटी सी बेकरारी है, कामयाब होने के बाद भी एक छोटी सी बेकरारी है। हमने तो जीत दर्ज कर ली, हमने तो जीत दर्ज कर ली, अब आपकी बारी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, होता यह है कि जब कोई कामयाब हो जाता है तो आमतौर पर हम लोग, ये बहुत ही कठोर शब्द है जिसको कहते हैं, जिसको प्रैक्टिकल बात कहते हैं, तो उसको हम लोग सबको खुशामदीद करते हैं या मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो रातें खराब की है, उन्होंने जो मुश्किलात का सामना किया है, उन्होंने जो आज हमारे घर में भी एक माँ, उनका कितना बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है कि एक बच्चा को इतना दिन अपने से दूर रखते हुए, शादी ब्याह मौत मैयत इस सब चीज से दूर रखते हुए, क्या इमोशन उन लोगों के दिल में नहीं है? क्या उन लोगों के दिल में जज्बात नहीं है? क्या प्रिंस बाबू के दिल में जज्बात नहीं है? क्या उसके भाई लोगों के दिल में जज्बात नहीं है कि मेरे घर में शादी हो रही है, मेरे घर में किसी की मैयत हो गई है, या मेरे घर में किसी का कोई प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि अपने आप को कामयाब करना है, किसी तरह भी हो अपने आप को कामयाब करना है, किसी तरह भी मतलब पॉजिटिव वे पे। और ये एक ऐसा मुकाम है जिस मुकाम पर आज वो खड़े हैं, जिस मुकाम पर आज वो हैं,
यूपीएससी का प्रोग्राम, यहाँ पर आपको 10-20 लाख या 10-20 करोड़ रुपया आपको घूस देके भी आपको काम नहीं बनता है साहब। यहाँ पर मेहनत काम आती है। यहाँ पर उन्होंने कितनी रातें खराब की होंगी, कितना दिन खराब किया होगा, कितने तरसे होंगे अपने इलाके के लिए, अपने बापों से मिलने के लिए। तो कहते हैं ना कि हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, तब जाके होता है चमन में दिदावत पैदा। तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक है, आज हम लोग एक कामयाब IAS ऑफिसर को पा गए। तो आप लोगों से फिर वही अपील करूंगा कि आप लोग भी, जो लोग यहाँ पर गार्जियन हो या फिर बच्चे हो, जो लोग आज स्टडी के लिए, आज हायर स्टडी के लिए कहीं पर जा रहे हैं, या फिर गार्जियन लोग हों जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम अपने बच्चों को इस तरह तैयार करेंगे, उस तरह तैयार करेंगे, आप लोग अपने अपने हिसाब से जुड़ जाइए। अल्लाह करे। सलाम, नमस्ते, आदाब। আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষক মাননীয় শ্রী ফারুক ভাইয়া মহাশয়। তাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন মাননীয় শ্রী MD আজাদ হোসেন মহাশয়। একবার জোরে হাততালি হবে, ধন্যবাদ। এরপর আমাদের আজকের যারা মাননীয় ও সম্মানীয় অতিথিরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে আজকের এই অনুভব এবং এটি সংবর্ধনামূলক অনুষ্ঠান, একটি অন্যতম অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান যে এই মঞ্চ জুড়ে রয়েছে, তাদের অনুভব আমরা খুব সংক্ষিপ্ত করে দুটো কথা হিসাবে শুনে নেব। তাই মঞ্চে দুটো কথা বলার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের প্রতি বা সামনে যারা বসে রয়েছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের সকলের প্রতি আমার নমস্কার, সালাম, আদাব। আর যারা ছোটরা রয়েছেন তাদের জন্য আমার অফুরন্ত ভালোবাসা। আমি দেরিতে হলেও প্রিন্সের বাড়িতে গেছিলাম। আমার টার্গেট ছিল প্রিন্সের হাতে আমি সংবর্ধনাটা তুলে দেব। আমি খবর রাখছিলাম প্রিন্স ইসলামপুরে এসছে, তারপরে আমি গেছিলাম ইসলামপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে। প্রিন্সের ব্যাপারে তো সেদিনই বলেছি, প্রিন্সের মাকে বলেছি, ম্যাডাম আপনি রত্ন গর্ভা, যার গর্ভে রত্ন জন্ম হয়। আপনি আপনার ফ্যামিলিতে অনেকগুলো রত্ন উপহার দিয়েছেন, ইসলামপুরকে সমৃদ্ধ করেছেন। আজকে উত্তর দিনাজপুরের আকাশে একটাই সূর্য, সেটা হচ্ছে প্রিন্স। তার আলোয় আলোকিত আমরা। আমি প্রিন্সকেও অনুরোধ করেছি, তুমি তো অনেক বড় জায়গায় থাকবে, ইসলামপুর তোমার জন্ম শহর, ইসলামপুরের জন্য কিছু চিন্তা করবে। ও আমাকে কথা দিয়েছে আমি চিন্তা করবো ইসলামপুরের জন্য, এতেই গর্বিত। ও কথা দিয়েছে ইসলামপুরের জন্য চিন্তা করব, এতেই গর্বিত। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। কোভিড এখনো যায়নি, সামনে দুর্গাপূজা আসছে বা বিভিন্ন উৎসব আসছে, আমরা সকলে একসাথে মাতোয়ারা হব, কিন্তু কোভিডটাকে মাথায় রেখে। ধন্যবাদ, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। हमें आज बहुत खुशी हो रही है, आप इस स्टेज पर आकर तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे इस्लामपुर सरजमीन में एक ऐसे लड़के ने एक ऐसा काम किया है जिसको जितना भी सराहा जाए कम है, जितना भी उठाना जाए कम है। क्योंकि ये गर्व की बात है, हमारी शान की बात है। इस्लामपुर में एक लड़का, उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर में एक लड़का ये हुआ है हमारे इस्लामपुर क्षेत्र। ये फख्र की बात है हमारे। हमें चाहिए कि हमारे जितने लड़के हैं, जितने जवान हैं, जितने पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, उन सबों को हम यही कहेंगे कि सब लोग कोशिश करें, मेहनत करके इसी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करें, उनके मुकाम तक आने की कोशिश करें। हमें खुशी होगा कि चलो एक आया तो दूसरा भी आया, दूसरा आया तो तीसरा भी आया। तो आप लोग भी कोशिश करें, अपने औलाद, अपने बच्चों को पढ़ाएं और उस पर गौर करें कि उसकी ज़िंदगी बन जाए, उसकी लाइफ की सिक्योरिटी हो जाए। आज ये एक लड़का है जिसका बाबा नहीं है, अब्बा हुजूर इंतकाल कर गए, मियाँ इंतकाल कर गए।
तीनों चले गए, साहब भाई चले गए, वो छोटे। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिवृंद, सामने बैठे हमारे सब भाइयों, इस्लामपुर के लिए आज एक स्वर्णिम दिन है। एक हमारा इस्लामपुर का लाल आज कहां से कहां पहुंच गया है, अपने परिवार का, अपने कुल का नाम रोशन किया है, पूरे इस्लामपुर का नाम रोशन किया है और पूरे उत्तर दक्षिण दिनाजपुर का नाम रोशन किया है। ऐसे होनहार एक लड़के को मैं अंतःकरण से शुभकामना देता हूँ कि वो एक IAS ऑफिसर, खाली IAS ऑफिसर बन के न रहे, एक हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण रोल निभाए, हिंदुस्तान में। प्रिंस के परिवार से मेरा कुछ व्यक्तिगत संपर्क है। प्रिंस के बड़े अब्बा इस्लाम और जुबैर, हम लोग एक साथ पढ़ते थे, एक बेस में थे। इस्लाम, जुबैर साहब और हम अच्छे दोस्तों में से एक थे। 1967 में हम लोगों ने हायर सेकेंडरी पास की थी। उस समय से इस परिवार के साथ मेरा संबंध से थोड़ा हो गया। हम कहते हैं कि मेरा दोस्त का लड़का आज IAS ऑफिसर बना है, इससे मैं समझता हूँ मेरा ही लड़का बना है, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। आज इस दुनिया में इस्लाम नहीं है, उसकी रूह ऊपर से देख रही होगी, कितनी खुश होती होगी, ये वही बता सकता है। भाइयों, इस्लामपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। जरूरत है कि उस टैलेंट को नहीं है तो हासिल नहीं कर सकते हैं। एक मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखिए, एक समय था जब मुस्लिम समाज से बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे पढ़ाते, माँ बाप की थी आज से 50 साल 60 साल पहले, लेकिन आज माहौल बदला है। जो समाज जितना शिक्षित होगा, माँ बाप का दायित्व है कि हम अपने बच्चे को कैसे एक शिक्षा दें। एक खराब चीज़ मुझे लगती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि प्राइमरी सेक्शन से ही राजनीति शुरू हो जाती है, प्राइमरी स्कूल से ही राजनीति शुरू हो जाती है। जो माँ बाप का ध्यान बच्चे पर जाना चाहिए वो नहीं जाकर एक मेंबर के चुनाव में 20 लाख 30 लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उसके हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ये आप लोगों को सोचना है, उसमें कुछ नहीं होगा। बच्चा अगर एक बच्चा है पूरे एक चिराग पूरी, आज लड़कियाँ इतनी बढ़ रही है, लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा जहूर को, जहूर की लड़की मेडिकल में पढ़ रही है। डॉक्टर हसीबुर रहमान को उनके गुलदस्ते से हमारे क्लब के सेक्रेटरी जहूर किबला उनको स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने कीमती समय को निकाल के आए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से। अब मैं हमारे प्रकाश भाई, हमारे प्रकाश सिंह जी भाई साहब को दो बात कह दीजिए। नहीं, हमसे खुशकिस्मती कि हमारे बीच हमारे जावेद भाई साहब, हमारे जावेद भाई साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका तालियों से उनका स्वागत कीजिए। ऐसा से उनको गुलदस्ता से उनको निमंत्रण करते हैं। और हमारे तालुक भाई, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच जावेद भाई कैसे भी करके जावेद भाई पहुंच गए हैं। हम लोग को उम्मीद थी कि पहुंचेंगे, हमारे उम्मीद पर वो खड़े उतरे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका फिर से। और फिर today we have many distinguished guests before us, and we are very happy to announce that today an IAS officer is going to come here and say a few words to you, and it will be very enjoying, very refreshing, very
scintillating. These things are happening always everywhere. And today an iron officer will address you. We will learn many things from him. But today I am going to tell you something about him when he was a child. He used to come to Good Shepherd School. When he was small, all of them, three of them, that means he and his two younger brothers used to come to Good Shepherd School to study. And then I was the teacher there. He was a very shy boy. He was a very shy boy. And he used to do his homework very disciplined way. He was very well-mannered and very intelligent also. And today, by dint of labor, diligence, perseverance, he has achieved a very great height. And we thank him for that. And by saying these words, I end my talk here. Thank you. সকলে মিলে উৎসব করতালির মধ্য দিয়ে আমরা স্বাগত জানাবো আজকের এই সংগঠনমূলক অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রথম আইএস অফিসার এমডি মঞ্জুর হোসেন আঞ্জুম, যাকে আমরা সকলে প্রিন্স হিসেবে চিনি, তারই একেবারে পরিবারের মানুষদের সংস্পর্শে, পরিবারের মানুষদের স্নেহে আজ একেবারে কাছে এক পুষ্প করতলের মধ্য দিয়ে তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। বেশ কদিন যাবত আনন্দের বেলা, যে গর্বের বেলা, যে উজ্জ্বল ধারা বয়ে চলছে, সেই উজ্জ্বল ধারার একটা অংশ এই মুহূর্তে ইসলামপুরের মূল কেন্দ্রে, যেখান থেকে আমরা প্রিন্স বড় হয়েছে, সেই প্রিন্সের বেড়ে ওঠার সেই স্থানে আমরা এক সংবর্ধনা সভা আয়োজন করেছি। যে আয়োজন করেছে ওয়াইএমজিসি ক্লাবের সকল সদস্যরা। আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইসলামপুর, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর তথা সূর্যাপুরী ভাষা অঞ্চলের প্রথম আইএস অফিসার, যা আমাদের রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের প্রথম এক গর্ব। আমি অনুরোধ করব সম্মানীয় আসনে আসীন হওয়ার জন্য মাননীয় শ্রী এমডি মঞ্জুর হোসেন আঞ্জুম তথা প্রিন্স মহাশয়কে সম্মানীয় আসনে আসীন হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ওয়েলকাম। এবারে আমরা পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেব ক্লাব মেম্বার সেক্রেটারি মাননীয় শ্রী জাহির আলম। অনুরোধ এবং প্রধান কেন্দ্রবিন্দু মঞ্জুর হোসেন আঞ্জুম। দুচোখে প্রতীক্ষা তার, স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে, ডাক ওঠে শহরে শহরে। হ্যাঁ, শহর জুড়ে যে আনন্দের মিছিল বয়ে চলছে, যে গর্বের মিছিল বয়ে চলছে, সেই মিছিলের একটা অংশ আজ এই প্রান্তে, যেখান থেকে যার ছোটবেলা বেড়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠা, যে পরিবারের মানুষজন যে অকৃত্রিম স্বাগতে, অকৃত্রিম উষ্ণ অভ্যর্থনাতে আজ সেজে উঠেছে একটি সংবর্ধনা সভা। এই সংবর্ধনা সভায় ওয়াইএমজিসির ক্লাবের সদস্যরা একটি মালা পরিয়ে বরণ করে নিলেন। এরপর অনুরোধ করব ক্লাবের পক্ষ থেকে যে উপহারটি রাখা হয়েছে, হৃদয় দিয়ে সাজানো রয়েছে, সেই উপহারটি প্রিন্স স্যারকে তুলে দেওয়ার জন্য। আগুনের একেবারে মাঝখানে দাঁড়ালে আর ঠিক আগুন লাগে না। আগে আগুনের পাশে পাশে থাকতো, মুখ পুড়ে যাবে, বুক পুড়ে যাবে, শরীর পুড়ে যাবে, সবসময় এই ভয় থাকতো। এখন আগুনের একেবারে মাঝ, এখন ডানায় আগুন, প্রত্যেক পালকে পালকে আগুন। কিন্তু অদ্ভুত, এই প্রথম আগুনে পড়তে পড়তে আগুন নিজেও পড়ছে। আমাদের প্রিন্স স্যারকে আমি এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি।
আর এই মুহূর্তে একবার জোরে হাততালি সবাই মিলে, একটা মাহেন্দ্রক্ষর মুহূর্ত, একটা বিশেষ মুহূর্ত, যে মুহূর্ত খুব কম আসে আমাদের জীবনে। আমাদের গর্বের ছেলে, আমাদের কম্পিটিটিভ যে স্টুডেন্টরা রয়েছে তাদের আগামী দিনের ভ্যানগার্ড, আগামী দিনের পথপ্রদর্শক এই অঞ্চল থেকে। আমরা ধীরে ধীরে তার মূল্যবান বক্তব্য শুনব। তবে একটু অপেক্ষা। উত্তর দিনাজপুর তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাধিপতির প্রতিনিধি মাননীয় শ্রী জাভেদ আক্তার মহাশয় কণ্ঠস্বরে দুটো কথা শুনবো। তারপর আমরা অধীর অপেক্ষায় রয়েছি, যার কণ্ঠস্বর শোনার জন্য অপেক্ষা করছি, যার अच्छा, शुक्रिया। जो लोग बाहर खड़े हैं वो लोग अंदर बहुत सीट है, आप लोग पार्टी बैठ जाइए। जावेद भाई अपना मूल्यवान वक्तव्य रखेंगे, आप लोग बाहर खड़े ना होके आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आप लोग अपने अपने चेयर में बैठ जाइए। आइए। सबसे पहले मैं आप सबों को सलाम अर्ज करता हूं, आदाब और नमस्कार के साथ। आज का ये दिन YMGC के तरफ से जो इस्तकबालिया प्रोग्राम का यहाँ पे इंतजाम किया गया, मैं इस पूरी कमेटी के टीम को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। उनका खैर मकदम करते हुए मैं इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए, सम्मान और इज्जत को बढ़ाने के लिए हमारे इलाके के जो जिम्मेदार शख्सियत अलहाज मेरे चचा डॉक्टर हसीबुर रहमान साहब जैसे शख्सियत यहाँ मौजूद, साथ में हमारे बहुत ही करीबी और हमदर्द, हमारे इलाके को एक नया दिशा, नया रास्ता दिखाने वाले, सहारा देने वाले हमारे डॉक्टर मजहर साहब, साथ में हमारे मौजूद, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि हमारे पुरसभा के पुरुष प्रशासक हमारे मानिक दत्तो साहब, उनके साथ साथ हमारे यहाँ मुर्तजा भाई, हमारे यहाँ रफीक भाई और हमारे यहाँ जाकिर भाई और जितने भी हमारे जिम्मेदारान शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, आप सबों को एम भाई को लेकर मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और जिनके नाम को मैं नहीं लिया हूँ, दिल पे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि सारे लोगों का चेहरा सभी को पहचानते हैं और ये तो घर वाली बात है। मैं मंजर बाबू के हक में एक चीज कहूंगा, मीटिंग जिनके नाम पर, जिनके लिए आजाद भाई ये लोग पूरी टीम को लेकर जिस मिट्टी का पैदावार ने आज सिर्फ हमारे छोसिया ही नहीं, इस्लामपुर ही नहीं, पूरा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, पूरा नॉर्थ बंगाल में जो हम लोगों का सर ऊंचा करने का एक मौका दिया है, उस बच्चे का नाम मंजर अंजुम है। आज वो मेरा छोटा भाई आज हमारे सामने में मंजर अंजुम है, लेकिन आप लोगों की दुआओं के जरिए से, आप लोगों के आशीर्वादों के जरिए से प्रकाश भाई यहाँ मौजूद हैं। सबों की दुआएं, सबों के आशीर्वाद का ही नतीजा है कि आज इस्लामपुर की सरजमीन में एक ऐसा फूल उगा है जिस फूल के लिए सभी को बेताब हो जाए। मैं उनके हक में एक छोटा सा कुछ नजराना पेश करना चाहता हूं कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान मिलती है। आज इसका जिंदा जागता मिसाल अगर है तो हमारे अंजुम बाबू हैं। और मैंने देखा है कि मैं जहां जहां भी इस बीच में आजाद भाई
कभी दलकोला, कभी करंजगी, कहाँ कहाँ अलग अलग अंदाज के प्रोग्राम में हमको जब बुलाया जाता है, मैं वहां गया और हर जगह मैंने फख्र के साथ सर को ऊंचा करते हुए जोरदार आवाज के साथ हर जगह मैंने ये पहुंचाया है कि आज हम लोग कितने खुशनसीब हैं, इस्लामपुर के लोग, चौसिया के लोग, इस मिट्टी के लोग, कि आज इस मिट्टी की माँ ने एक बेटे को ऐसे जन्म दिया जिस बेटे ने आज सबों के माथे पर एक जो तो सम्मान और ताज पहना कर रख दिया। आज आपको याद होगा 200 साल सरकार ने, अंग्रेज की सरकार ने हुकूमत हमारे देश पर की थी और उस जमाने में जब उसके जुल्म अत्याचार इतने सर पर चढ़ गए थे कि वहां पर हर माँ ने अपने बेटे को कहा कि जा बेटा, माथे पे कफन बांध कर जा, अपने देश की मिट्टी की, माँ की मिट्टी को अगर तुम्हें सम्मान बचा लिया, माँ की सरजमीन की इज्जत बचा लिया, मैं समझूंगी कि मेरा बेटा मेरे दूध का कर्ज अदा कर दिया। आज वही मैं मंजर बाबू को कहता हूं, मैं उनकी मां को सैल्यूट करता हूं कि ऐसी मां हर घर में पैदा हो और हर घर में ऐसे बच्चे को जन्म दे कि मंजर साहब अगर IAS बन रहे हैं, उनके छोटे भाई MS की भी कंप्लीट मतलब तैयारी में बैठे हुए हैं, एक छोटा भाई जो है तो वो इंजीनियर बन रहा है। तो छोसिया की मिट्टी एक जमाने में ऐसी मिट्टी थी कि छोसिया के नाम से, रसिया के नाम से, कचना के नाम से लोग डरते थे और आज वही छोसिया की मिट्टी देखिए, खासतौर से बाबू हुजूर की दुआ है इस मिट्टी पर, क्या यह मिट्टी में किस तरह का गुलाब उगा है कि जिस गुलाब को अपने हर कोट में, हर कपड़े पर, चाहे वो मंदिर में जाके पूजा करे, चाहे वो ज़ियारत जाके मजार में करे, लेकिन फूल फूल की अहमियत होती है। वही फूल आज हमारे छोसिया में मंजर बाबू के शक्ल में उगा है। इस फूल का एहतराम करना, इस फूल का इस्तेमाल करना, हम जितना भी करें वो कम है। बस दुआएं और आशीर्वादी का नतीजा है कि आज हमारे सामने में मेरा छोटा भाई, मेरा बच्चा, मेरे घर का पोता, भतीजा, नाती जो भी है मेरे घर का है। आज मेरा घर का ही वो रौनक बढ़ाया है, आज सारे इलाके का रौनक बढ़ाया है, पूरे इस्लामपुर का रौनक बढ़ाया है। यही मैं कहते हुए आप लोगों से अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आजाद भाई, मुझे आने में थोड़ी सी ताखिर हो गई, वजह ये थी कि मैं बाहर था और कार्ड मेरे घर में दिया और आप सबों के लिए फिर भी जावेद अख्तर है और इंशाल्लाह रहेगा। अभी कोई कह रहे थे कि जावेद भाई, आजाद भाई बोल रहे थे कि जावेद भाई मतलब आखिर टाइम तक पहुंच ही गए। मैं ये कहता हूँ कि रात हो या दिन, दोपहर हो या बरसात या ठंडा, जब भी जावेद को अपना समझ के याद कीजिएगा, जावेद आपके पास में मिलेगा। खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। लोग बैठे हुए हैं, उनका इनाम बोला जाए। इनाम से साथ আমরা এবারে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি, আমরা এবারে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি আমরা এরপর খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দুটো কথা শুনে নেব YMGCর সেক্রেটারি মাননীয় শ্রী জাহির আলমের কাছ থেকে। একবার জোরে। मैं आज यहाँ पर पहुँचे हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से अपने क्लब के मेंबरों की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे मंजर हुसैन अंजुम उर्फ प्रिंस साहब को तहे दिल से अपने क्लब के मेंबरों की तरफ से और अपने तरफ से बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और यही कहकर मैं अपना बयान कर देता हूँ। हेलो, सबसे पहले मंच पे बैठे लोग, जावेद साहब, सिक वालों, मज़र आलम साहब, तबलीग साहब, ये सब लोग मैं बहुत उनको जानता नहीं, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और गुड आफ्टरनून।
दूसरी चीज़ बहुत बहुत शुक्रिया क्लब को, OYMGC जो क्लब है, मेरे तीनपुल का क्लब है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस तरह से इस्तेमाल किया, ये प्रोग्राम बड़ा नाइस किया। और बाकी जो यहाँ सब लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं में कुछ लोग मुझे बचपन से देखे हैं, कुछ लोग का बचपन मैंने देखा है, तो सबको भी हेलो। तो मेरे बारे में जैसे प्रिंस ही जानते होंगे आप लोग, मंजर तो नाम सुने नहीं होंगे। तो मेरा जो असली नाम है वो मंजर हुसैन अंजुम है, और बचपन में ही देखे होंगे। 2008 के बाद बाहर ही रहना हुआ है मोस्टली, तो उसके बाद एजुकेशन बाहर ही हुई है। तो सब कुछ सबने तो बोल ही दिया है, ज़्यादा कुछ बोलने का बचा नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब सबसे पहले ऊपर वाले का कि इस मुकाम तक पहुंच पाया और इस काबिल बनाया कि ऐसा मुकाम तक पहुंच पाऊँ, मेहनत कर सकूँ। और दूसरा जो शुक्रिया है वो बोलना है अपने अम्मा अब्बा का, जिन्होंने पढ़ाने, एक टाइम था जब चौसिया में पढ़ाने का एक कल्चर नहीं था, जैसा ऑलरेडी बोला सब लोगों ने कि इनफेमस था, अच्छी चीज़ों के लिए फेमस नहीं था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है अब। लोग पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, अच्छे स्कूल्स भेज रहे हैं, कॉलेजेस भेज रहे हैं, और अब ऐसा हो गया है कि हर 4-5 घरों से एक डॉक्टर इंजीनियर निकल ही रहा है चौसिया में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश यही थी कि अच्छा करें। बचपन में अच्छा करते थे, स्कॉलर जाते थे तो पढ़ते थे, मन में रहता था कि यहाँ अच्छा करेंगे, स्कॉलर में और भी बच्चे जाएंगे चौसिया से। तो ये कोशिश रही आगे भी, और कोशिश किया कि अच्छा करें। एंड उसके कारण अभी बच्चे भी बाहर निकलना शुरू हुए हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ, जब अलीगढ़ में था तो चौसिया से लोग मैसेज करते थे कि भैया अलीगढ़ में कैसे एडमिशन लें। तो अच्छा लगता था कि माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं बाहर, बच्चों का भी मन है, ख्वाहिश है बाहर पढ़ने का। तो इंशाल्लाह इस चीज़ को कोशिश करनी है कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे, बरकरार रहे। और हर जगह जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है मैंने यही कम्युनिकेट किया है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। जो इलाका है, हमारे इलाके में बहुत पोटेंशियल है। आप अगर देखिएगा हर एक चीज़ में, हर एक फील्ड में बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, हमारे इलाके में स्पेशली। तो कोशिश ये रहनी चाहिए, जैसे आपने ऐसा मंच मेरे लिए किया है, तो हम ऐसा मंच एक बाकी लोग को भी, बाकी फील्ड में जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। जिस हर साल 10-5 जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनको एसोसिएट करने का ट्राई कर सकते हैं, उनसे जुड़े रहने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वही लोग हैं ना जो बाकी लोग को इंस्पायर करेंगे। तो इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी, और एक नई लाइफ शुरू करूँगा, और कोशिश करूँगा कि एक अच्छा इंसान बनूँ, एक ईमानदार इंसान बनूँ, सही चीज़ें करूँ। और कोशिश रहेगी कि जो इलाका है इंशाल्लाह इसको भी साथ लेके चलना है। जोरदार तालियां। और इंशाल्लाह शायद मुझे वेस्ट बंगाल कैडर ही मिलेगा, तो जुड़े रहेंगे। और ऑल इंडिया सर्विस है, तो सर्विस कहाँ होगी ये नहीं पता है, बट जुड़े रहेंगे। और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और भी थोड़ा प्रेयर्स की ज़रूरत होगी। और बस यही बोल के थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको, शुक्रिया। और इस्लामपुर आबाद रहे, चौसिया आबाद रहे, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। सब लोग साथ वाले हैं, कोशिश करनी है, और सब अच्छा रहेगा। थैंक यू। OYMGC ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রথমে আমাকে জানানো হয়েছিল যে ব্যাট বল একটি নিয়ে আসা হয়েছে, যা প্রিন্সের স্বাক্ষর নিয়ে সেই ব্যাটটি ক্লাবে সম্পদ হিসেবে রাখা হবে। তাই অনুরোধ করব ক্লাবের সদস্যদের ব্যাট বলটি নিয়ে আসার জন্য, এবং প্রিন্সের মূল্যবান স্বাক্ষরটি আগামী দিনে সবার পাথেয় হয়ে থাকুক। এই স্বাক্ষর, এই কথা, এই স্মৃতি হিসাবে থাকুক আমাদের এই ক্লাব জুড়ে। OYMGCর পক্ষ থেকে এটি
ব্যাট, সেই ব্যাটে আমাদের প্রিয় প্রিন্স স্যারের স্বাক্ষর ক্লাবের সম্পদ হয়ে থাকুক। এই সুন্দর মুহূর্ত আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক, সকলের কাছে প্রার্থনা করছি। মাননীয় শ্রী লালু মহাশয়কে অনুরোধ করব ফুলের স্তবক প্রিন্স মহাশয়কে হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ। এই আয়োজন, এই সম্ভাষণ, এই সংবর্ধনামূলক অনুষ্ঠান আমাদের এখানে শেষ হলো। আমরা যে উজ্জ্বলতা, যে আনন্দ, যে উৎসাহ নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, সেই উৎসাহ যেন আজীবন আমাদের পাথে হয়ে থাকুক। এই মঞ্চ জুড়ে বারবার যে কথাটি বারবার উচ্চারিত হলো, যেন আগামী দিনের এই অঞ্চল থেকে এবং ইসলামপুর থেকে যেন আরো অনেক আইএস অফিসার হয়, আরো অনেক WBCS অফিসার হয় এবং আরো অনেক ছেলে যেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং ভালো কলেজ এবং স্কুলে যেতে পারে। তার জন্য এখন থেকেই আমাদের গার্জিয়ানদের সচেতন হতে হবে এবং যদি আমরা সেইভাবে সচেতন হই তাহলে আজকের এই সম্ভাষণ, আজকের এই আয়োজন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হবে। তাই একবার উষ্ণ করতালির মধ্য দিয়ে আজকের এই সুন্দর আয়োজন আমাদের আজীবন স্মৃতিগোচর হয়ে থাকুক, আজীবন স্মৃতি সম্পদ হয়ে থাকুক এবং প্রিন্স স্যারের জন্য আমাদের অনেক শুভকামনা। আশা করি যেই সংগ্রাম করে এই পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে এবং সামনের দিনে সেই আধিকারিক হ্যালো, ওয়াইএমজিসির এই আজকের এই আয়োজনে যারা যারা ছিলেন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের প্রিন্স স্যার তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে চাইছে। তাদের আমি অনুরোধ করব আমাদের বিভিন্ন পদে যারা রয়েছে প্রেসিডেন্ট, আচ্ছা আমি অনুরোধ করব ওয়াইএমজিসির সকল সদস্যরা যদি মঞ্চে আসে, সবার সঙ্গে প্রিন্স স্যার যদি মুহূর্তটা কাটায় তাহলে খুব সবচেয়ে ভালো হয়। এবার মঞ্চে আমি অনুরোধ করব ওয়াইএমজিসির সদস্য এবং সদস্যরা এবং আধিকারিকরা থাকবে এবং অন্যান্য পদে যারা রয়েছে শুধু ওয়াইএমজিসির সদস্যরা থাকবে মঞ্চে। বাকিদের অনুরোধ করব প্রিন্স স্যারের সঙ্গে ওয়াইএমজিসির সকল সদস্যরা একসঙ্গে বসে একটি গ্রুপ ছবি তুলবে। তাই অনুরোধ করব ওয়াইএমজিসির সদস্যরা যাদের আজকের এই কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়েছিলেন তাদের অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। মঞ্চ জুড়ে থাকবে ওয়াইএমজিসির সদস্যরা, তাদের সঙ্গে একটা সুন্দর মুহূর্ত, একটা সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকুক আমাদের আজকের প্রধান অতিথি প্রিন্স স্যারের সঙ্গে। फोटो करवाने के फोटो नहीं है भाई। ধন্যবাদ সকলকে।
मेहमान कहाँ रब्बी अंकल करीब में आ गया। इधर तक लीजिए हमारा हाथ में लाइए थोड़ा आगे सामने हुई सब हिसाब किताब कर लेगा अभी हमसे कौन बोलेगा ना अब देगा तो दूध देगा क्यों हो रहा नहीं सबका उठा इधर से आओ ना मासूम इधर से बीच में उठिया हिलना हाँ बोले सामने जाइए ना नहीं ठीक है इधर ही घुमा नहीं अटेंड किए हैं बहुत सारा इंशाल्लाह जब जहाँ भी जाते हैं खुश हो जाते हैं টার্মিনাস যখন রেজাল্ট আউট হইল ওইখানে টার্মিনাস আমাকে পার্টি দিয়ে দিয়ে এই জায়গায় দিতে পারে এই জায়গায়